اور سورج آگ برسانے لگا۔ جہلم میں بجلی اور گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ طول پکڑ گیا۔ خواتین کو سحری اور افطاری کے اوقات میں شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں بابر حسین اپنی رپورٹ میں۔ جی بالکل، جہلم میں درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ ہی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا ہے اور 1 گھنٹے کے بعد کئی علاقوں میں 1 گھنٹہ بجلی جاری ہے اور دیکھا جائے تو ساتھ ساتھ گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ جہلم میں اس وقت سحر اور افطار کے اوقات میں بھی گیس جو ہے گھریلو صارفین سخت پریشان ہے، گیس بند ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے کاروباری حضرات بھی شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ درزیوں کا جو ہے سیزن ہے، لیکن درزیوں کی دکانوں پہ رش ہونے کی وجہ سے وہ شدید پریشان ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کے جو کپڑوں کی سلائی ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ عید کے قریب آتے ہی جو بازاروں میں رش ہے، جس کی وجہ سے دکاندار جو ہیں ان کے پاس جب شاپنگ کرنے کے لیے شہری آتے ہیں تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کو بھی کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ شہری یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آگے ہی کرونا کی وجہ سے اور بے پناہ مہنگائی کی وجہ سے کاروبار متاثر ہو چکے ہیں اور اب جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ تواتر سے ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ بجلی کی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے تاکہ شہریوں کے لیے آسانیاں ہوں۔ جی بہت شکریہ بابر، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ذخیرہ اندوز اپنی خیر منا لیں کیونکہ اسسٹنٹ کمشنر میلسی نے کامیاب کارروائی کی ہے اور نواحی علاقہ موضع دین واہ میں گودام پر چھاپہ مار کر 3000 گندم کی بوریاں برآمد کر لی ہیں۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پروا میں نہری پانی بحران سنگین ہو گیا۔ سی بی آر سی کی بندش اور تعمیری کام تاخیر کا شکار ہونے کے خلاف اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محسن سلیم۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں حالیہ سیلاب کے باعث تباہ ہونے والی چشمہ رائٹ بینک کینال کو کئی ماہ گزرنے کے باوجود تاحال مرمت نہ کیا جا سکا، جس کی وجہ سے تحصیل پرووا میں نہ صرف زرعی اراضی بنجر ہو چکی ہے بلکہ دیہی علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی بھی قلت پیدا ہو چکی ہے۔ سی آر بی سی نہر کی بندش اور تعمیری کام میں تاخیر پر اہلیان علاقہ کی جانب سے روڈ بند کر کے احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا گیا اور ساتھ ہی ضلعی انتظامیہ اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ نہر کی مرمت میں تاخیری حربے اب ناقابل برداشت ہو چکے ہیں، لاکھوں ایکڑ اراضی بنجر ہونے کے قریب ہے۔ اہلیان علاقہ کی جانب سے ضلعی انتظامیہ اور حکومت سی آر بی سی نہر کی جلد تعمیری کام کو مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سی آر بی سی کی مینٹیننس کی جائے کیونکہ جو دمان کا ایریا آتا ہے سی آر بی سی میں، وہاں پینے کے پانی کا بھی ایشو سب سے بڑا ہے۔ نہر اثرات تو بعد میں کرتی ہے، پہلے پینے کا پانی اور ہماری گزر بسر اس پر ہے۔ تقریباً ہمارے 12 سے 16 لاکھ لوگ اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ بدقسمتی سے پینے کے پانی کی ایک بوند بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ نے مظاہرین سے مذاکرات کرتے ہوئے نہر کی مرمت کے کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ کیمرامین افراد سیاب کے ساتھ محسن سلیم، سچ ٹی وی، ڈیرہ اسماعیل خان۔ اور مظفر گڑھ کے شہری مضر صحت آئس کریم اور جوس کے استعمال سے بال بچ گئے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ مظفر گڑھ میں فوڈ سیفٹی ٹیم نے آئس کریم یونٹ اور جوس پلانٹ پر چھاپہ مارا۔ 2000 سے زائد غیر معیاری قلفیوں اور 10 کلو کے جعلی پیکنگ مٹیریل کو تلف کر دیا گیا۔ حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ سٹوریج ایریا میں حشرات کی بھرمار اور صفائی کے ناقص انتظامات پائے گئے۔ جعلساز مافیا کا ہر حربہ ناکام بنائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کی صحت کے ساتھ کھیلنے والوں کے خلاف دن رات کارروائیاں جاری ہیں۔ اور حکومت نے عید سے قبل پیٹرول مہنگا کر کے عیدی بٹور لی۔ پی ڈی ایم سرکار نے پیٹرول کی قیمت میں ایک ساتھ 10 روپے کا بڑا اضافہ کر دیا۔ مٹی کا تیل بھی 5 روپے 78 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کی فرمائش یا کچھ اور، ماہ سیام کے اختتام پر اتحادی سرکار کا مہنگائی کے ستائے عوام کو زوردار جھٹکا۔ مہنگائی کے خاتمے کا نعرہ لگا کر تبدیلی سرکار کو چھٹی کرانے والی پی ڈی ایم حکومت نے رات کے اندھیرے میں ایک بار پھر مہنگائی کے سونامی میں غرق بے بس شہریوں پر پیٹرول بم بھی گرا دیا گیا۔ 10 روپے مزید اضافے کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 272 روپے سے بڑھ کر 282 پر پہنچ گئی۔
मिट्टी का तेल भी 5 रुपए 78 पैसे फी लीटर मजीद महंगा हो गया, जिसके बाद 186 रुपए 7 पैसे में फरोख्त जारी है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 293 और लाइट डीजल ऑयल की कीमत 174 रुपए 68 पैसे फी लीटर बरकरार है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पाकपतन के शहरी भी परेशान हैं। जानते हैं एडी शाहिद की इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर के करीब आते ही जरूरियात जिंदगी की अशिया को सस्ता करने की बजाय हुकूमत की जानिब से पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर महंगा करके हुकूमत ने महंगाई की मारी कौम के जख्मों पर नमक पाशी कर दी। पाक पतन में पेट्रोल नई कीमत के साथ कहीं पर 282 रुपए फी लीटर तो कहीं पर 283 रुपए लीटर के हिसाब से फरोख्त होने लगा, जिस पर जिले इंतजामिया प्राइस कंट्रोल कमेटियां रेट्स कंट्रोल करने की बजाय खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही हैं। महंगाई की वजह से आवाम बहुत परेशान है। ईद करीब है, जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों के कपड़े खरीदने से परेशान हैं और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ार और परेशान हैं। और ऊपर से हुकूमत ने ये जो पेट्रोल पंप गिराया है ये आवाम की समझ से बाहर है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा होगा, जिसे बर्दाश्त करना अब अवाम के बस की बात नहीं रही। लिहाजा हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी चाहिए। जब आलमी मंडी में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल की कीमतें कम हैं, तो फिर यहाँ पर आए दिन इनकी कीमतों को बढ़ाना समझ से बालातर है। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन। रात गए अवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया। सादकाबाद के शहरियों का कहना है कि हम खुश थे कि हुकूमत ईद का तोहफा देगी और पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन 10 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया गया, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। हम्मादुल्ला की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत के अवाम को रिलीफ के वादे धरे के धरे रह गए। मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा होने से शहरी हुकूमत पर फट पड़े। शहरियों का कहना है कि पहले ही इतनी महंगाई है कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल है, ऊपर से ईद भी सिर पर है, लेकिन हुकूमत ने हमें रिलीफ देने के बजाय पेट्रोल बम गिरा दिया है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत अपनी सियासी जंगों में लगी हुई है, अवाम का किसी को भी कोई ख्याल नहीं। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया, 274 रुपए से 285 रुपए लीटर तेल कर दिया। ईद रिलीफ देने की बजाय बल्कि अवाम से और ज़्यादा मैंने नुकसान के गुर्बत किस पे लकीर में ले आए। ईद का मौका था, हमने सोचा था कि कोई 20-30 या 50 रुपए गवर्नमेंट जो है तेल सस्ता करेगी, लेकिन उन्होंने नहीं सस्ता किया। ये पीटीएम और इमरान खान जो है पीटीआई वाले एक दूसरे की सियासत में सिर्फ अवाम को ही नुकसान दे रहे हैं, ना अवाम को कोई फायदा आ रहा है, ना कोई रिलीफ आ रहा है। का कहना था कि पहले हम महंगाई से बहुत तंग हैं, हुकूमत अगर रिलीफ नहीं दे सकती तो महंगाई भी ना करे। रोज ब रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ हम्मादुल्ला, सच टीवी, सादिकाबाद। और हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराया है। फैज़गंज में भी पेट्रोल मजीद 10 रुपए महंगा हो गया है। इस हवाले से इमदाद चांद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। रात के अंधेरे में पेट्रोल मसनूआत पर 10 रुपए इजाफा करने बाद फैज़गंज की आवाम ने हुकूमत के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। आवाम का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से हर चीज महंगी हो चुकी है, हुकूमत के इस फैसले को नहीं मानते। रात 12 बजे ऐलान गवर्नमेंट ने कर दिया है, 10 रुपए तेल बढ़ा दिया है। हम गरीब आदमी को खाने के लिए 2 वेलों की रोटी नहीं है, हमारे परेशान है। 150 रुपये किलो आटा कर दिया है, 125 रुपये चीनी का रेट कर दिया है। हम गरीब आदमी अपने बच्चे पालने में, पढ़ाने में बहुत परेशान है। तेल बढ़ गया है तो हर चीज़ का रेट इन्होंने बढ़ा देना है, बगैर पूछे बताए राशन का हर चीज़ का रेट बढ़ा देते हैं। फैज़गंज की आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमत कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन मशहद रजा के साथ इमदाद चांग, सच न्यूज़, फैज़गंज। मुजफ्फरगढ़ में भी महंगाई का तूफान नहीं थम सका है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल ना हो सकीं, मुनाफाखोर मनमाने रेट्स वसूल करने में मसरूफ़ हैं। तफसीलात जानते हैं महर अशफाक सियाल से। अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ के इलाके बिहारी कॉलोनी में। अगर मैं बात करूँ महंगाई की तो महंगाई आसमान से बातें कर रही है, जिसकी वजह से दिहाड़ीदार तबका इंतहाई परेशान है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से इनका क्या कहना है। जी, मैं मुजफ्फरगढ़ बिहारी कॉलोनी का रिहायशी हूँ, जो कि मैं 500-600 वाला मजदूर हूँ। महंगाई इतनी हो गया है कि हमारे लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। हमारी हुकूमत से अपील है कि महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, ताकि हमारे लिए 2 वक्त का खाना बआसानी से बन जा सके। जी, जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, शहरी का कहना है महंगाई इतनी हो चुकी है जिसकी वजह से हमारे घर में 2 वक्त का खाना बनाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। अगर मैं बात करूं प्राइस कंट्रोल कमेटी की तो
प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल ना होने की वजह से दुकानदारों ने अपनी मर्जी का निर्ख मुकर्रर कर रखे हैं। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा है कि खुदारा प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल की जाएं और महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। शुक्रिया महर अशफाक सियाल तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर डुडियाल में महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। ईद करीब है मगर बाजार वीरान है। आए रोज़ बढ़ती कीमतों ने ठेले और रेडी बानों का कारोबार भी तबाह कर दिया है। सफ़ेद पोश तबका परेशान दिखाई देता है। आसिफ अली की रिपोर्ट। डुडियाल में बढ़ती हुई महंगाई से जहां शाय खुर्दो नोश हो या रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें महंगी हुई हैं, वहीं पर रेडी और ठिये लगाए बैठे गरीब ग्राहकों के इंतजार में हैं कि कब कोई आए तो हमारे बच्चे भी ईद कर सके। कारोबार साड़ा जड़ा बिल्कुल जीरो होया पिया। कोई दुकानदार पूरा बाजार मार्केट डुडियाल विच कोई दुकाना च गाहक वड़ना दा कोशिश नहीं करता पिया। लोग आवाम जनाब आवाज़ा मार के आवाम दर आवाज़ा लेकिन आवाम दर दुकानदार दर ध्यान ही नहीं पाता, हिम्मत ही नहीं पाता। वो आंदे पिन बयास खाली जनाब जो अफ्तारी है सामान शमान के ना ये भी बड़ी गल है। अगर हुकूमत वक्त इन रेडी और ठिया बानों के लिए कोई मुनासिब इकदाम करे तो ये लोग भी बआसानी अपनी दिहाड़ी लगा कर बच्चों को ईद की खुशियाँ दे सकते हैं। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली नायक, सच न्यूज डुडियाल। महंगाई के तूफान से शहरी परेशान। डेरा गाजी खान में मुनाफाखोर फल डबल रेट पर फरोख्त कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए मोहम्मद अली मिरानी की। डेरा गाजी खान ईद उल फित्र के करीब आते ही फ्रूटों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। अवाम का कहना है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ इस्लामी महीनों में चीजें सस्ती होने की बजाय महंगी हो जाती हैं। माह रमजान से पहले खजूर 350 रुपए था, माह रमजान आने के करीब खजूर 650 रुपए हो गए। फल फ्रूट इतने महंगे हुए, सेब लेने जाते हैं 70 रुपए का हमें एक दाना मिलता है, 450 रुपए 650 रुपए किलो सेब हो गया है। हम मंडी से महंगा फ्रूट लेके आते हैं, ठीक है, तो यहाँ जो सा ना महंगा बेचते हैं। अब जो भी गाहक आता है ना जी, वो रेट पूछ के चला जाता है। अवाम को माफियाज के हाथों लूटने पर मजबूर कर दिया है। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मिरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। महंगाई का सुनामी। दायरा दीन पना में ईद की शॉपिंग में तेजी ना आ सकी। बाजार वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। महंगाई के सबब गाहक ना होने के बराबर हैं। आरिफ बलोच की रिपोर्ट। महंगाई की वजह से मीठी ईद फीकी पड़ गई। महंगाई के असरात ईद की शॉपिंग पर भी नजर आने लगे। ईद करीब आ गई, लेकिन दायरा दीन पना की मार्केटों में ईद की शॉपिंग करने वाले खरीदारों का रश ना बढ़ सका। मलबूसात, ज्वेलरी और शूज की दुकानें खरीदारों से खाली नजर आती हैं, जबकि खरीदारी करने आए चंद खरीदार भी महंगाई का शिकवा करते नजर आते हैं। घर से मैं 2000 रुपए लेके आया था, कपड़ों का एक सूट लेना था मैंने, अच्छा वाशन वेयर का, वो तो 2500 का बता रहे हैं, लेस भी कोई नहीं है। आपके सामने हालात है, गरीब आदमी क्या करे, जिसकी 15,000 तनख्वाह है, घर का खर्चा करे या कपड़े ले। खाने से के लिए परेशान है, ऊपर से ईद भी गरीब नहीं कर सकता। हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, इस महंगाई को कम करें, अपनी नायल हुकूमत को मेहरबानी करें, सुधारें, सही करें। मैं आवाम के ऊपर जो जुल्म किया हुआ है इसको हटाएं, मेहरबानी करें, महंगाई कम करें ताकि गरीब भी ईद कर सके। महंगाई की वजह से सफेद पोश तबके के लिए खरीदारी करना भी मुश्किल हो गया, जबकि गाहक न होने की वजह से दुकानदार भी शदीद परेशान है। महंगाई के हालात पिछले साल की निस्बत इस साल भी उससे बढ़ के हैं। पिछले साल अगर फर्क करो, एक जूती अगर 1000 में सेल कर रहे थे और उसकी जो अब रेशो है वो तकरीबन 1500 से 1800 तक चली गई है। शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज, देहरादून पना। उधर छोटी ज़ेरी में महंगाई के बायस ईद की खुशियां मांद पड़ रही हैं। नई मलबूसात खरीदना गरीब आवाम का ख्वाब बन गया है। रिपोर्ट देखिए ताहिर हुसैन गंगाह की। बढ़ती हुई महंगाई ने छोटी ज़रीन के शहरियों की ईद की खुशियां भी मुतासर कर दी है। महंगाई के बाद ग्राहक और दुकानदार दोनों ही परेशान नजर आते हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल बाजारों में खरीदारी न होने के बराबर है। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से ग्राहक दुकानों का रुख ही नहीं करते। पिछले साल 100 में मिलने वाली चीज 200 में मिल रही है। इतना रश कहने जी में ईद होना चाहिए। महंगाई की वजह से बंदा घिंदे नहीं, बिल्कुल छोड़ी वेना। महंगाई ईद नेड़े थी, कोई शे कहनी डबल चीज़ा थी कहन, ਹੁਣ एक चीज दे पैसे डबल थी कहन, ईद ते चस कहनी। शहरियों का ये कहना है कि ईद के दिन करीब आ गए, मगर महंगाई के बायस ईद की शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है। अशिया की कीमतों में गुज़श्ता साल की निस्बत 2 गुना इजाफा हो चुका है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे ताकि गरीब तबका भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। कैमरा टीम के साथ ताहिर हुसैन लगा, सच न्यूज, चोटी ज़हरीन।
मुल्तान में भी मुनाफाखोरों की चांदी। माह रमज़ान मुबारक में मुनाफाखोर आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ़। अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई की चक्की में पिसते आवाम के लिए सहरी अफ्तारी भी मुश्किल बन गई है। अहमद काशिफ की रिपोर्ट। मुल्तान और गिरदोनवा में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा ताहाल बरकरार है। मुनाफाखोरों ने माह सयाम में भी सब्जियों और फलों की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर रखा है, जिसकी वजह से रोज़ादारों के लिए सहरी और अफ्तारी करना भी मुश्किल बन गया है। वाहिद पाकिस्तान हमारा मुल्क है जिसमें हर चीज़ रमज़ान के महीने में आकर और आप से हो जाती है, लेकिन नीचे आने का नाम लेती है। अब जिस गरीब का मकान घर वगैरह किराए का हो और वो उसका ज़रिया माश सिर्फ या मजदूरी हो, वो क्या करेगा? वो जूती ले, कपड़े ले, रोज़े रखे, या सब्जियां ले खरीदे, या गोश्त खरीदे? क्या करे बंदा, किधर को जाए? माह सयाम के बाबरकत दिनों में मुनाफाखोरों की जानिब से बजाय सवाब के रोज़ादारों की जेबों पर डाका डालने का सिलसिला जारी है। इंतजामिया की गिरफ्त ना होने की वजह से दुकानदारों ने भी खूब लूट मचा रखी है। सब्जी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, बंदा क्या कहे? जो चीज़ लेने आओ वो चीज़ महंगी बहुत होती है। कपड़ा ले लो, जूती ले लो और सामान ले लो, कोई चीज़ भी ले लो, घी ले लो, आटा ले लो, वो महंगा है। अवाम ने हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ अमली इकदामात करने का मुतालबा किया है। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। मुल्तान से रिपोर्ट आपने देखी। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। और हबीबाबाद में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने ईद उल फितर के मौके पर जायद किराया वसूल करने और मुसाफिरों की ओवरलोडिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ खसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। हबीबाबाद में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने और ओवरलोडिंग में मुलव्वस पाए जाने वाले तमाम पब्लिक सर्विस गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। इस मौके पर DSP का कहना था कि मोटरवेज और हाईवेज पर सफ़र को महफूज और आरामदेह बनाना मोटरवे पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ईद के मौके पर मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। ईद की छुट्टियों के दौरान हाईवेज पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है, लिहाजा ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए खसूसी इक़दाम किए गए हैं। देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। पाक पतन शरीफ में हादसात से बचाने के लिए पेट्रोलिंग पुलिस ने 7 रोज़ा आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर वाले पंफलेट तकसीम किए जा रहे हैं। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट। पतन शरीफ में अवाम को हादसात से महफूज रखने के लिए पेट्रोलिंग पुलिस सरगर्म। पेट्रोलिंग चेक पोस्ट, चौक मरले और ढोला बेली बांध के एहलकारों ने मुसाफिरों में पंफलेट तकसीम किए और बाकायदा 7 रोजा आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। उनका मजीद कहना है कि अवाम उन्नास को पहले ये हदायत दे रहे हैं, अगर अमल ना किया तो सजाएं और भारी जुर्माने भी किए जाएंगे। ट्रैफिक कवानीन में सीट बेल्ट का बांधना, ओवर स्पीड से इज्तनाब करना, ओवरलोडिंग से ग्रेज करना, वन व्हीलिंग से ग्रेज करना, जो कि इंतहाई जानलेवा है। ये मेरा तमाम अवाम के लिए पैगाम है कि एडिशनल IG साहब पेट्रोलिंग की तरफ से अब हमें ट्रैफिक के मुतल्लिक इख्तियारात मिल गए हैं। अभी 1 हफ्ते के लिए हम लोगों को सिर्फ अवेयरनेस दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में बता रहे हैं, और 1 हफ्ते के बाद ये हमारी कैंपेन खत्म हो जानी है और चलान शुरू हो जाना है। इन अफसरान का मजीद कहना है कि छोटे बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल मत दें, क्योंकि वो आपका मुस्तकबिल है, और हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। ओवर स्पीड से भी इज्तनाब करें, क्योंकि देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बहरहाल बेहतर है। पेट्रोलिंग पुलिस के इस इकदाम को अवाम खूब सराह रही है। अवाम को भी चाहिए जो ये हदायत दे रहे हैं उस पर मुकम्मल अमल करें और अपनी जानें बचाएं। कैमरा राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाक पतन शरीफ। और अफ्तार के दस्तरखान की जीनत चटनी एक ज़ूद हज़म ग़िज़ा भी है। रमज़ान मुबारक में हर खाने के साथ इस्तेमाल की जाती है। कोहाट में अमरूद और खुश्क मेवा जात से तैयार की गई चटनी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। कोहाट से अली बंगश की रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में दस्तरखान की जीनत चटनी, जो कि दीगर खानों के साथ इस्तेमाल में लाई जाती है, हर रोज़ेदार शौक से चटनी का एहतमाम करता है। ऐसे ही एक चटनी फरोश कोहाट गमकोल शरीफ कैंप नंबर 2 में ऐनुल्लाह अमीन, जिसकी चटनी कोहाट के अलावा जनूबी अजला में भी बहुत शौक से खरीदी और शौक से इस्तेमाल की जाती है। इसमें अमरूद कोहाट का जो स्पेशल अमरूद है, जो एक सारा दुनिया में मशहूर है, ये स्पेशल अमरूद कोहाट का। मूंगफली है, इसमें खीरा है, टमाटर है, तकरीबन 10-12 किस्म की स्पेशल चीजें जो है इसमें डाली जाती है। दूर दूर से खरीदार आकर इसकी चटनी खरीदते और इस्तेमाल करते हैं। हर चीज इसमें डालता है,
ये हम लोग जब घर में बनाएगा तो घर का सिर्फ 300 रुपए से खर्चा आता है, इधर 50 रुपए का सारा घर का काम चलता है। चटनी के मुनफरद जायके की वजह से दीगर शहरों के खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। टोबा टेक सिंह में ईद की खरीदारी अरूज पर पहुंच चुकी है। रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर शहरियों का तांता बन गया है। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह में रमजान अल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होते ही बाजारों में ईद की खरीदारी अरूज पर पहुंच गई है। खवातीन बाजारों में रंग बिरंगे मलबूसात, मसनूई जेवरात, चूड़ियां और बच्चों के रेडीमेड कपड़े खरीदती नजर आती हैं। शहर में दर्जियों ने कपड़ों की सिलाई के आर्डर काम के रश और लोड शेडिंग के पेश नजर बंद कर दिए। शहरियों का कहना है कि दर्जियों के नखरों और वक्त की बचत की वजह से रेडीमेड कपड़े खरीद रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बाजारों में कितना रश है, ईद का लोग निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि दर्जियों के पास टाइम नहीं है कपड़े सीने का। दुकानदारों का कहना है कि इस साल महंगाई और बेरोजगारी ने कमर तोड़कर रख दी है, जिसकी वजह से कारोबार मुतासर हो रहा है। इधर माशाल्लाह रश ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि दर्जी इस वक्त सूट नहीं पकड़ रहे, इसी वजह से लेडीज़ का भी हमारे पास स्टॉक काफ़ी है, माशाल्लाह सेल हो रहा है। शहर में जूं जूं ईद करीब आ रही है, कपड़ों, जूतों और चूड़ियों की दुकानों पर खवातीन का रश दीदनी है। शहर में हर तरफ गहमा गहमी है, हर कोई ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। होशरुबा महंगाई ईद की खुशियों पर असरअंदाज हो रही है। दर्जियों ने कपड़ों की सिलाई के नर्ख बढ़ा दिए हैं। खवातीन खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए कामरान की। ईद उल फितर अवाम पुराने कपड़े पहनकर मनाएगी। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बिजली के यूनिट की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। दर्जियों ने सिलाई के रेट बढ़ा दिए हैं। सिलाई 1000 से 1500 रुपए कर दी। गरीब और मुतवस्सित तबके की मिसाल में इजाफा हो गया। महंगाई ने अवाम से ईद की खुशियाँ छीन ली गई। मैंने भाई से रुपये पिछली मरतबा 600 की सिलाई थी। इन्होंने कहा भाई बिजली के यूनिट बहुत महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से हम खुद परेशान हैं, क्या करें, कस्टमर हमसे लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम बार बार कस्टमर को आगाह भी कर रहे हैं भाई हम कुछ नहीं कर सकते। ये जाके आप जो है ना हुकूमत को अपील करो कि बिजली सस्ती करें, रिलीफ दें, उसके हिसाब से जो है ना महंगाई। हम 20-25 हज़ार वाले कमाने वाले बंदे भाई, कहाँ 1000-1500 जो है ना सिलाई भर के सही। लाइट वालों ने इतना परेशान किया है, 50 रुपये यूनिट हो गया है और टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं। कहाँ जाए हम? कस्टमर को बोलते हैं कि सिलाई बढ़ाओ तो कस्टमर लड़ पड़ता है हमसे। यार मैं अपने 2 सूट लेकर आया था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यहाँ पर कोई हमसे सूट नहीं ले रहा है। और पिछले साल तो 600 रुपये सिलाई थी, अब 1100, 1200, 1000 रुपये में कहाँ से दूँ? गरीब बंदा कहाँ से देगा इतने पैसे? हुकूमत सिर्फ हुकूमत एंजॉय कर रही है, महंगाई कंट्रोल नहीं कर रही है। कैमरामैन अशफाक कोसो के साथ कामरान अली, सच न्यूज़, रोडी। ईद उल फितर के करीब आते ही डहरकी में दर्जियों के नखरे आसमान से बातें करने लगे हैं। सिलाई का रेट सुनकर मीठी ईद शहरियों को अब कड़वी लगती है। मजीद देखिए अब्दुल गफूर की इस रिपोर्ट में। ईद करीब आते ही दर्जियों के नखरे आसमान से बातें करने लगे। सिलाई के रेट सुनकर शहरियों को मीठी ईद भी कड़वी लगने लगी। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, डेरकी में दर्जियों की जानिब से सिलाई के मनमाने रेट वसूल किए जाने लगे। शहरियों का कहना है कि जहां पहली मीठी ईद पे 3-4 सूट सिलवाते थे, अब महंगाई की वजह से एक सूट सिलवाना भी मुश्किल हो गया है। मगर वो भी दर्जी सिलाई करने के लिए राजी नहीं, कहते हैं कि बुकिंग बंद हो गई है। अगर मुश्किल से सूट सिलाई के लिए ले रहे हैं तो सिलाई के रेट दुगने कर दिए हैं। साल कपड़ा भी बहुत महंगा हुआ है, 400-500 सूट पे बढ़ा हुआ है और दर्जी भी कपड़े नहीं ले रहे और सिलाई भी उन्होंने डबल कर दी है कि 700 से पहले 700 थी, अभी 1200-1500 रुपये तकरीबन सिलाई ले रहे हैं। नलकी भी महंगी हो गई है, कांचे वालों ने भी रेट बढ़ा दिया है, इसलिए हमने भी रेट बढ़ा दिया है, 1200 ले रहे हैं। ठीक है, पुराना लोग बोलते हैं पुराना रेट लो, पुराना रेट किस हिसाब से लें, हर चीज महंगी हो गई है। दर्जियों का कहना है कि महंगाई ने हमारे कारोबार को बहुत मुतासिर कर दिया है। कपड़ों की सिलाई में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो चुका है। शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई को कम किया जाए ताकि सफेद पोश आदमी भी ईद उल फितर पे नए कपड़े जेब तन करके ईद की खुशियां मना सकें। कैमरामैन मोहम्मद मुस्तफा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़ डेरकी। ईद उल फितर के करीब आते ही फ्योनियों की डिमांड भी बढ़ जाती है। मानावाला में आज भी रिवायती अंदाज में फ्योनियां तैयार की जाती हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां शेर मोहम्मद ज़कर। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मानावाला में भी मीठी ईद करीब आते ही फ्योनी की मांग में इजाफा हो जाता है। मानावाला में आज भी रवायती अंदाज के साथ आटे, मैदे के साथ देसी घी में फ्योनियां तैयार की जाती हैं और आजकल शहरी फ्योनियों को भी बहुत पसंद करते हैं। मीठी ईद और फ्योनिया ना हो तो ईद का मजा जो है दुबाला नहीं होता। तो हम जो है ईद के लिए स्पेशल फ्योनिया देसी घी में तैयार करते हैं
तो जो कि माना वाला के जो शहरी हैं वो बड़े ज़ौक़ और शौक से लेके जाते हैं। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि पहले हम फ्योनियां दूसरे शहरों से खरीदते थे, अब हम इनको खुद तैयार करते हैं और मानावाला के शहरी बहुत शौक से इनको खरीदते हैं और ईद का मजा दुबाला करते हैं। कैमरा टीम के साथ मियां शेर मोहम्मद अरगन, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मुजफ्फरगढ़ में शहरियों ने मलबूसात की खरीदारी के बाद अब जूतों की दुकानों का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना था कि दीगर ज़ेब जूतों और चप्पलों के बगैर ईद अधूरी है। समीउल्लाह की चमड़े के टुकड़ों को नफासत से काट कर मुख्तलिफ रंगों और धागों के सीने के बाद बनती है जनूबी पंजाब की मशहूर रिवायती चप्पल, जो आज भी मुजफ्फरगढ़ में हर मौके पर पहनी जाती है। इसका खास अंदाज, मजबूती इसकी मकबूलियत की वजह है। इस चमड़े का चप्पल बहुत पहना जाता है, जो पहले 1500 से 2500 रुपए में मिला करता था, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के बायस अब 3000 से 4000 तक मिलता है। जैसे ईद का त्यौहार और शादी ब्याह और दीगर तकरीबात गुजारने के लिए पहना जाता है। जूतियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि हम खरीद सोच से बाहर है। 1000 वाली चीज़ अब 1500 2000 की हो गई है। लिहाजा हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि हम मटीरियल में हर चीज़ में कम करें। ईद और त्यौहार पर मुजफ्फरगढ़ का रिवायती चप्पल पहनने की रिवायत कदीमी है और चप्पल पहनने को मर्दाना शान समझा जाता है। जनूबी पंजाब में ईद त्यौहार के मौके पर जहाँ अजीज और अकारिब रिवायती चप्पल पहनते हैं, वहीं दीगर तकरीबात के मौके पर भी मुजफ्फरगढ़ के रिवायती चप्पल पहने दिखाई देते हैं। जो हमारी जूती 1000 से 1500 में तैयार होती है, वो 2.5 से 3000 में तैयार हो रही है। और महंगाई का ये सिस्टम है कि वो रेट डबल हो गए और जो मटीरियल जो आता था पहले जो हमारे, वो बहुत ही डबल हो गया है। काफत से प्यार करने वाले लोग हर दौर में रहे हैं, इसीलिए हाथ से बने खालिस चमड़े से तैयार चप्पल की रिवायत आज भी जिंदा है। तो वहीं दुकानदार और गाहक बढ़ती हुई महंगाई का भी शिकवा करते दिखाई देते हैं। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। उधर ईद की आमद है। हाफसाबाद में खुस्से की मांग में इजाफा हो गया है। दुकानदारों के वारे न्यारे। रिपोर्ट कर रहे हैं मेहर अबू बकर यूनुस। ईद के करीब आते ही बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। सभी को कपड़ों की खरीदारी के साथ साथ जूते भी चाहिए। हाफिजाबाद के रेल बाजार में मौजूद जूतों की तमाम दुकानें और छोटे छोटे कारखाने हैं, जहां कई दहाइयों से चमड़े से तिल्ले वाली हैंडमेड चप्पल और खुद से तैयार किए जाते हैं। ईद पे काफ़ी कस्टमर ऐसे हैं जो हमारी शॉप पे परचेज करते हैं। सिल्वर, गोल्डन, उसके अलावा क्रीम, सारा कलर अल्हम्दुलिल्लाह बनते हैं। तो लेडीज में भी इस तरह की शूटिंग के साथ सारे कलर मौजूद हैं। दुकानों पे सजी चप्पलें और खुद से खरीदारी करने वालों को अपनी जानब जरूर खींचते हैं। कोई गोल्डन रंग की चप्पल का खरीदार है तो किसी को डार्क ब्राउन रंग में खुद सा पसंद है। लेकिन इस बार आसमानों से बातें करते जूतों की कीमतें सुनकर लगता है महंगाई गरीब आदमी की ईद की खुशियों को फीका करते नजर आ रहे हैं। मार्केट के प्राइस काफी हैं, लेकिन इनकी जो कीमत है बहुत मुनासिब है, इसलिए हम इनके पास आते हैं। बेहतरीन चमड़े से तैयार करदा मुख्तलिफ डिजाइन की चप्पलें और खुद से तैयारी के बाद मार्केट में लाई जाती हैं, जहां इनकी 10,000 रुपए तक है, जिसका जो ही चाहे वो ही अपनी मर्जी के मुताबिक चीज खरीद सकता है। चमड़े से तैयार करता खुद से और तिले वाली चप्पल ईद पर हर कोई पहनने का ख्वाहिशमंद जरूर है, लेकिन पांव तले पहनने के लिए इन चप्पलों की कीमतों को गरीब आदमी अपनी पहुंच में कैसे लाकर ईद की खुशियां मना सके। कैमरामैन टीम कैमरा मैं अबू बकर यूनुस, सच टीवी, हाफिजाबाद। वक्त के साथ साथ रेत और रिवाज भी बदल गए। पहले ईद के मौके पर दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए खूबसूरत कार्ड भेजे जाते थे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ये रिवायत अब दम तोड़ गई है। गुजरांवाला से मुदस्सिर बुखारी की रिपोर्ट। बदलते वक्त के साथ आवाम में ईद कार्ड की जगह SMS, व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ईद की मुबारकबाद देने का रवाज कायम हो गया है। एक जमाना था जब खूबसूरत ईद कार्ड खरीदना भी ईद की तैयारियों में शामिल था। दोस्त अहबाब हों या रिश्तेदार, ईद कार्ड के जरिए उनको ईद मुबारक कहना एक रिवायत थी, लेकिन आजकल ये रिवायत दम तोड़ती नजर आ रही है। कार्ड खरीदन आया वा इस टाइम ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਈਦ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ सोशल मीडिया ਤੇ ਆ ਕੇ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ईद विश करते हैं। ईद कार्ड फरोख्त करने वाले दुकानदार का कहना है कि रमजान के शुरू में ही हम ईद कार्ड के स्टॉल्स लगा लेते हैं, लेकिन हर साल ग्राहकों की तादाद कम होती जा रही है, जिसकी वजह से कारोबार पर भी फर्क पड़ रहा है। अब जो है ना ईद के हवाले से जो ईद कार्ड का जो प्रोसीजर है ना, वो अब कार्डों का नहीं रहा। अब जो कार्डों का रुझान आज से 10 साल 12 साल पहले होता था ना, वो काम नहीं रहा, बहुत कम हो गया हुआ है। आप समझे कि अब 10% लोग हैं जो सिर्फ कार्डों पे विश करते हैं, 90% छोड़ चुके हैं, सोशल मीडिया पे आ गए हैं। छोटे बच्चों के लिए कार्टून और बारबी डॉल के डिजाइन वाले कार्ड्स, जबकि बड़ों के लिए मुख्तलिफ खूबसूरत पैगामात वाले और फूलों की कटिंग और बेहतरीन छपाई वाले ईद कार्ड तवज्जो का मरकज हुआ करते थे। कैमरामैन टीम के साथ मुदस्सिर बुखारी, सच न्यूज़, गुजरांवाला। गुजरांवाला से मुदस्सिर बुखारी की रिपोर्ट आपने देखी। खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए।
वेलकम बैक। लोअर दीर में मौसम ने करवट बदली तो रोजेदार घरों के बजाय दरियाए पंचकोड़ा के ठंडे माहौल में अफ्तारी करने लगे। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर दरिया पंचकोड़ा के किनारे कुदरती हसीन मुकाम शंग्रीला पार्क का है, जहाँ रोजादार बड़ी तादाद में अफ्तारी के लिए आते हैं। लोअर दीर में रमजान मुबारक के तीसरे आशरे में मौसम बदलते ही रोजादारों ने भी घरों की बजाय दरिया पंचकोड़ा के ठंडी माहौल में अफ्तार पार्टियां करने लगी। शंग्रीला पार्क आए हुए रोजादार अफ्तारी के लिए मुख्तलिफ किस्म के पकवान बनाते हैं, जबकि कुछ घरों से तैयार पकवान लाकर अफ्तारी का मजा दोबारा करते हैं। पार्क जो है ना, इसमें आए दोस्तों के साथ हमने प्रोग्राम भी किया अफ्तारी के लिए और बहुत ज्यादा मजा करते हैं, लोग भी ज्यादा इधर आते हैं और बहुत ज्यादा मजेदार मौसम भी है। शंग्रीला पार्क आए हुए रोजादारों का कहना है कि दरिया के किनारे कुदरती हसीन मनाजिर में अफ्तारी का अलग मजा होते हैं और जब इस माहौल दोस्त और अहबाब और फीमेल साथ हो तो अफ्तारी का मजा दोबारा हो जाते हैं। अफ्तारी की तैयारी हो या हसीन मनाजिर, दोस्तों की मौज मस्ती हो, यही सब यादगार लम्हात हर कोई मोबाइल कैमरों से महफूज बनाते हैं। टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, शंग्रीला पार्क, लोअर दीर। इंसान वही जो दूसरों के काम आए। सखर में समाजी तंजीमों की जानिब से मुस्तहिक अफराद में ईद तहाइफ और दीगर सामान तकसीम किया गया। रिपोर्ट देखिए जाहिद शेख की। सखर में भी फलाही तारीख के ज़ेर एहतमाम 150 से ज़ायद स्पेशल पर्सन मर्दों, ख़वातीन और बच्चों में ईद के ताइफ तकसीम किए गए, जिसमें गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर फॉर VIC के बच्चे भी शामिल थे। इस मौके पर वफाकी मोहतसिब आला सैयद महमूद शाह ने खुसूसी शिरकत की और अपने हाथ से बच्चों में ताइफ भी तकसीम किए। इस महंगाई के दौर में और ऐसे टाइम पर ईद के टाइम पर बुलाकर उनको तोहफ़े देना और तोहफे देना और उनमें उनकी खुशियों में शरीक रहना, मैडम का ये बड़ा सराहने वाला काम है। हम अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह पाक हमसे ये नेक काम ले रहा है और हम खुश नसीब अपने आप को समझते हैं कि अल्लाह पाक हम ऐसे लोगों की खिदमत करने का मौका दे रहा है, क्योंकि इनको अपनी खुशियों में शामिल करें और आप इनको थोड़ी सी भी खुशी दें तो ये बहुत ज़्यादा इनको बड़ी खुशी मिल जाती है। फलाही इदारे और मुखैर हजरात की कार खैर से इस्तेफादा हासिल करने वाले सफ़ेद पोश लोगों का कहना है कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वाले अफराद दो वक्त की रोटी के लिए भी तरस गए। ऐसे में साहिब इस्तात अफराद की जानिब से हमारी इमदाद करना एक मुस्तहिब अमल है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। कैमरामैन अशफाक खोसू के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज़, सखर। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में निजी फलाही तंजीम की जानिब से नादार मुस्तहिक अफराद और मुसाफिरों के लिए दस्तरखान का अहतमाम किया गया, जहाँ सैकड़ों अफराद रोज़ाना अफ्तार और सहर से मुस्तफ़ीद होते हैं। रिपोर्ट देखिए मीर उस्मान की। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में निजी फलाई तंजीम की जानिब से 4 मकामात नांगी, जातना, बन खुरमा और पुरानी हटियां पर सैरी और अफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है, जहां पर हर रोज़ 4 से 5 हज़ार लोग सैरी और अफ्तारी करते हैं। अफ्तारी करने वाले लोगों में गरीब, गुरबा, दिहाड़ीदार तबका और मुसाफिर शामिल हैं। तंजीम के रज़ाकार मुख्तलिफ हस्पतालों में जाकर भी मरीजों के लवाहिकीन को सैरी और अफ्तारी का सामान मुहैया करते हैं। मैं मीरपुर के लोगों से ये अपील करता हूँ कि इस सिलसिले को जारी रखने के लिए हमारे साथ चलें। इंशाल्लाह ये उनके लिए बहुत बड़ा सदका जारिया का सबब बनेगा। फलाही इदारे की इंतजामिया का कहना है कि सैरी और अफ्तारी की मद में रोजाना बहुत ज्यादा खर्चा आता है। उन्होंने ताजरों और मुहैयर हजरात से अपील की है कि वो इस नेक काम में उनका साथ दें, ताकि वो रोजादारों को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराम कर सकें। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ मीर उस्मान, ब्यूरो चीफ, सच TV, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। जूही में निजी फाउंडेशन की जानिब से गरीब आवाम के लिए फ्री मेडिकल कैंप और अफ्तारी का अहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हनीफ रुदनानी। जोही में समाजी तंजीम आल पाक कश्मीर वेस्ट फाउंडेशन सैलाब के बाद माह रमजान में भी खिदमत के कामों में पेश है। जोही, दादू और बन सैदाबाद में सैलाब मुतासरीन इलाकों में इफ्तार पार्टी कराने का भी सिलसिला जारी है। आल पाक कश्मीर वेस्ट फाउंडेशन के चेयरमैन राजा अख्तर महमूद का कहना है कि पिछले साल सैलाबी सूरत हाल में सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में इमरजेंसी में काम किया था और अब इन इलाकों में अलकयूम इंटरनेशनल फाउंडेशन के तावन से फ्री मेडिकल कैंप, रोजेदारों को इफ्तारी करवाना, टेंट तकसीम करना और कपड़े देने का सिलसिला पहले रमजान से जारी है। इनका मजीद कहना था कि डोनर्स की मदद से आगे ऐसे गरीब खानदानों को मुफ्त घर बना कर देने का प्रोग्राम है जो अपना घर खुद नहीं बना सकते। कैमरा टीम के साथ हनीफ रुदनानी, सच न्यूज़, जोही। इसी के साथ सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए sach.tv.pk और देखते रहिए सच।